Good morning, all the students. Last week in supplementary, I started the first lesson, The Inventor Who Kept His Promise. मैंने इस लेसन के कुछ पैराग्राफ आपको हिंदी में समझाए. आई होप कि जितना मैंने पढ़ा है आपको सब समझ में आया होगा. नाउ अभी आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट आई वांट टू रिवाइज द पैराग्राफ्स विच आई ऑलरेडी टॉट यू. मैंने हिंदी में आपको समझा दिया है, अब मैं उसको इंग्लिश में रिवाइज करूंगा. ये आपके लिए अच्छा है कि आप जो पहले पढ़ चुके हैं उसको इंग्लिश में दोबारा सुनेंगे, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो. सो हियर वी गो. दिस लेसन, द इन्वेंटर हू केप्ट हिज प्रॉमिस, is the story of the famous American scientist Thomas Alva Edison. Students, when you want to study at night, you simply switch on the light and electric bulb gives you light. Do you know who invented it? Yes, Thomas Alva Edison invented the bulb. First, I want to tell you about his childhood. When he was a child of 8 years, he used to go to school. Actually, he was fond of doing experiments and he was fond of asking the questions. So, when the teacher was teaching about the birds, he stood and asked, "Ma'am, if a bird can fly, why can't a man fly like a bird?" So the teacher answered him, "Actually, man doesn't have wings, so that's why man cannot fly." Okay, he said no. He stood again and asked, "Man, we fly kite in the sky and kites don't have wings. So if a kite can fly without wings, why can't a man fly without wings?" This was really very interesting and very intelligent question, but the teacher got angry. She thought he is a naughty and foolish boy. So she called his parents and asked him to take away from school. She struck off his name. Okay, then his mother started teaching him at home, and she was patient enough to give the answers of all the questions he used to ask. Okay, after that one day he saw a bird came down the earth and picked up some worms and flew away. This thing gave him an idea. Oh, a bird is eating worms, so that's why it is able to fly. So if a man also eat worms, he will also fly. He wanted to you can say try this experiment on someone. So he took hold of some worms, pulped them and mix water in it, and he gave this mixture to his servant girl. His servant girl drank that mixture. She could not fly. Still, she fell ill. That day, his mom warned him not to do such silly experiments. So this was the first experiment of his childhood. Now, अब हम आगे पढ़ेंगे कि बचपन में और उस बच्चे ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए जो इंटेलिजेंट थे या फुलिश थे, ये आपको इसका पता लगाना है. लेट्स गो. Once he went to a poultry farm with his mother. अब उसका दूसरा एक्सपेरिमेंट देखिए. एक बार वह अपनी माता के साथ में मुर्गी पालन फार्म गया. पोल्ट्री फार्म जहाँ मुर्गी पालन होता है. There he saw a hen. वहाँ उसने एक मुर्गी देखी. It was sitting on its eggs. वह अपने अंडों पर बैठी हुई थी. He asked his mother about it. उसने इसके विषय में अपने माता से पूछा. And she answered. और उन्होंने उत्तर दिया, The hen is hatching its eggs. मुर्गी अपने अंडे से रही है. After some time, कुछ समय के बाद, chickens will come out of the eggs.
बच्चे चूजे जो है वो अंडों से बाहर निकल आएंगे। वाई कांट आई हैच एग्स, थॉट यंग एडिसन। मैं अंडे क्यों नहीं सेक सकता, युवा एडिसन ने सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही गॉट ए डजन एग्स, उसने 1 दर्जन अंडे खरीदे एंड सेट ऑन देम, और उनके ऊपर बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, वह कुछ समय के बाद उठा। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन उसको वहाँ कोई चूजा नजर नहीं आया। ही हैड ओनली स्मैश्ड एग्स, उसने केवल अंडों को तोड़ दिया था। एंड स्पॉइल्ड हिज शोर्स, और अपने कपड़े गंदे कर लिए थे। He got a good beating from his mother that day. उस दिन उसको अपनी माता जी से अच्छी पिटाई मिली, माता जी ने उसकी अच्छी पिटाई की। तो दिस वॉज द सेकेंड एक्सपेरिमेंट इन हिज चाइल्डहुड। ए रियली फनी बॉय, वास्तव में वह एक विचित्र बालक था। wasn't he? क्या वह नहीं था? He failed in all these experiments, वह अपने इन सभी प्रयोगों में असफल हो गया था। बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन उनसे उसने कुछ ना कुछ सीखा था। ही हैड लर्न दैट, उसने ये सीखा था कि हिज आइडियाज वर रॉन्ग, कि उसकी जो विचार है वो गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वह पुस्तकों का शौकीन था। एंड रेड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, और उसने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ ली थी। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर ईच बुक ही रेड, उसके पिताजी उसको 25 पैसे दिया करते थे। ये सेंट जो है अमेरिका का सिक्का है, 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक, तो 25 पैसे दिया करते थे उसको हर पुस्तक के लिए। ही रेड, जो वो पढ़ता था। ही रेड वाइडली एंड विद पॉकेट मनी ही गॉट, ही रेड, उसने पढ़ा वाइडली, मैंने विस्तृत रूप से, एंड विद द पॉकेट मनी ही गॉट, और उस पैसे से जो कि उसको जेब खर्चे के लिए मिलता था। ही बॉट, उसने खरीद ली, मोर बुक्स, और की पुस्तकें, एंड सेटअप ए स्मॉल लेबोरेटरी, और एक छोटी सी लैब स्थापित कर ली, प्रयोगशाला। हिज मदर एनकरेज्ड हिम, उसकी माता ने उसको प्रोत्साहित किया। एंड हेल्प हिम, और उसकी सहायता की इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसके प्रयोगों में। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के उपरांत, एडिसन फाउंड दैट, एडिसन ने पाया कि ही नीडेड मोर मनी, उसको और पैसे की आवश्यकता है, टू कैरी आउट हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए। एंड ही वॉन्टेड मोर बुक्स, और उसको और पुस्तकों की आवश्यकता थी। एज ही हैड रेड ऑल द बुक्स, जैसे कि वो उन सभी पुस्तकों को पढ़ चुका था। ही हैड एट होम, जो घर पर थी, तो उसके अलावा उसको और पुस्तकें खरीदने की आवश्यकता पड़ रही थी। तो उसके लिए उसको क्या चाहिए था? पैसा। ही वॉन्टेड टू गो आउट, और तीसरी बात ये कि वो बाहर जाना चाहता था। एंड सी न्यू प्लेसेस, और नए स्थान देखना चाहता था। एंड तो इस तरह से वह नए नए स्थानों को देखना चाहता था और नए नए लोगों से मिलना चाहता था। ही वॉन्टेड टू रीड न्यू बुक्स, वह नई किताबें पढ़ना चाहता था। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान को विस्तृत करना चाहता था, ज्ञान को और ज़्यादा सुधारना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे, तो इसलिए उसने इरादा किया रेलवे में नौकरी करने का। एट फर्स्ट, पहले तो हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, उसके माता पिता को यह विचार पसंद नहीं आया। एज ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि वो सिर्फ 12 वर्ष की अवस्था का था। बट दे एग्रीड, लेकिन वे सहमत हो गए। व्हेन ही गिव देम गुड रीजन, जब उसने उनको सही कारण बताए फॉर हिज डिसीजन, अपने निर्णय के। सो एडिसन बिकेम ए न्यूज पेपर बॉय, इस प्रकार एडिसन न्यूज़पेपर बांटने वाला लड़का बन गया। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रियट, तो डेट्रियट तक ये ट्रेन जाती थी और वहाँ से वापस आती थी। तो इस तरह से उसने वह यात्रा करने लगा। ही सॉल्ड न्यूज़पेपर्स, उसने अखबार बेचे, स्वीट्स मिठाइयाँ भी बेची, एंड फ्रूट्स फल भी बेचे। एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे, और प्रथम दिन उसने $2 कमा लिए। ही सेड टू हिज मदर एट सुपर दैट नाइट, तो उस रात सुपर यानी रात के खाने पर उसने अपनी माता जी से कहा, टेक दिस $, मदर, मम्मी ये $, ले लीजिए। एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1, प्रत्येक रात मैं आपको $1 दूंगा। फ्रॉम वॉट आई अर्न, उसमें से जो कि मैं कमाऊंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपना वायदा निभाया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने देखा कि उसने अपनी कमाई के प्रथम दिन आधे पैसे अपनी माता जी के हाथ पे रखे और उनसे वादा भी किया कि मैं प्रत्येक शाम आपको पैसे लाकर दूंगा, जितना भी मैं कमाऊंगा $1 तो आपको ज़रूर दूंगा। और उसने ये वादा लास्ट तक निभाया, जब तक उसकी माता जी जीवित रही। तो ये एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने अपना वायदा निभाया।
ये वायदा उसने अपनी माता जी से निभाया बचपन में। अभी और कौन कौन से वायदे इसने किए जो अपने देशवासियों से किए, विश्व के लोगों से किए, और उन वादों को निभा पाने में वो समर्थ हो पाया या नहीं, हम आगे देखें। ओके, ए ईयर और 2 लेटर, 1 या 2 वर्ष के बाद, एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर। एडिसन ने इरादा किया अपना स्वयं का अखबार निकालने का। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस, छापने वाली जो मशीन होती है। अभी तो चूंकि इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हो चुका है, पहले छपाई जो होती थी वो हाथ से उसको छापते थे, तो पुरानी प्रिंटिंग प्रेस उसने वो खरीद ली एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन। उसको कहाँ स्थापित कर दिया? रेल के डब्बे में। ही एडिटेड, उसने संपादन किया, एंड प्रिंटेड, और प्रकाशित किया हिज पेपर, अपना अखबार। सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज, और बहुत सारी कॉपीज बेच भी दी, एंड मेड मोर मनी, और पैसा कमा लिया। विद द मनी ही गॉट, वो पैसा जो उसने कमाया, ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन। उसने अपने रेल के डब्बे में ही एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित कर ली। तो इस तरह से आपने देखा कि बचपन से ही ये लड़का कितना मेहनती था, वायदे का पक्का था, और इसने कितना स्ट्रगल किया अपनी बचपन में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। When he was 15, जब उसकी अवस्था 15 वर्ष की थी, he met with an accident, उसके साथ एक दुर्घटना हो गई, that affected his career, जिसने उसके करियर को, उसके जीवन को प्रभावित किया। While he was doing an experiment, जब वह एक प्रयोग कर रहा था in his laboratory, अपने प्रयोगशाला में, the train turned around a corner, तो एक कोने पर ट्रेन जो है वो मुड़ी। There was a sudden jolt, अचानक झटका लगा, and a bit of phosphorus fell on the floor of his carriage, और उसके डब्बे के फर्श पर कुछ फास्फोरस के टुकड़े गिर गए, एंड इट कॉट फायर, और उसमें आग लग गई। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, इससे पहले कि वो उसको बुझा पाता, द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, तो अखबारों ने आग पकड़ ली। द फायर स्प्रेड एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, वो आग फैल गई और एडिसन मदद के लिए चिल्लाने लगा। द गार्ड केम इन, गार्ड अंदर आया, एंड टुगेदर दे वर एबल, और दोनों मिलकर के समर्थ हो पाए टू पुट आउट द फायर, आग को बुझा पाने में। बट दैट वॉज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस, परंतु वह एडिसन की जो सेवा थी, जो नौकरी थी, उसका अंत था ऑन द ट्रेन में। तो ट्रेन में जो नौकरी करने लगा था वो उसका वहाँ पे अंत हो गया। ही वॉज डिसमिस एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले ही स्टेशन पर उसको डिसमिस कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट लाइन्स। द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 वर्षों तक एडिसन टूक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज़, एडिसन ने भिन्न भिन्न शहरों में नौकरियां की। ही मेड गुड यूज़ ऑफ लाइब्रेरीज, उसने पुस्तकालयों का अच्छा प्रयोग किया, एंड मेट एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रियों में जो विशेषज्ञ हैं उनसे मिला, एंड वर्कशॉप में भी। तो फैक्ट्रीज और वर्कशॉप्स में जो विशेषज्ञ होते हैं उन लोगों से मिला, या पुस्तकालयों में जाकर वहाँ किताबें पढ़ करके उनका उपयोग किया। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, उसने फैक्ट्री और वर्कशॉप में जो विशेषज्ञ थे उनसे प्रश्न पूछे, लर्न ए लॉट फ्रॉम देम, और उनसे बहुत कुछ सीखा, एंड वर्क हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और अपने प्रयोगों पर उसने और ज़्यादा पहले से ज़्यादा मेहनत की। तो इस प्रकार ये चाइल्डहुड की कहानी है थॉमस एल्वा एडिसन की। अभी आगे चलकर उन्होंने और क्या क्या प्रयोग किए ये अब हम देखेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो।